Hello students, welcome to the next video of physics. In the previous video, we were discussing the concepts of meter bridge, and today we are going to discuss one other electrical measuring instrument, that is potentiometer. But before starting with potentiometer, let me introduce you. I am your physics teacher Vivek Yadav and you are studying current electricity with me. So just take out your notebook and pen and start making notes. Okay, and just close all your disturbances. Sit with the piece in a corner and watch the video in a single shot, and don't forget to make the notes. Okay, so let us start studying potentiometer. Potentiometer. Dear students, as the name is suggesting, this name is containing of two words, potentio and meter. So looking at the name, we just see that potentiometer is some meter to measure the potential. The name is suggesting this. Yes, it is correct. It is a device which is used to measure the potential difference. Measure the potential difference. Now, looking at this definition, one question arises in our mind. Sir, in potentiometer, why do we need potentiometer when we are having another device for measuring potential difference, that is voltmeter? Right? Yes, although we are having voltmeter, but we need another device to study the potential drop across a wire. That device is known as potentiometer. Now voltmeter, what is voltmeter? We all have seen voltmeter in our labs. Voltmeter is basically a small box having written capital V in its center and some scale divisions are embarked on it. Right? That is a small box. Okay, we are having voltmeter for measuring the potential difference, but basically potentiometer is preferred to measure the potential difference. Why is it so? Let us see. Potentiometer is preferred over voltmeter to measure potential difference because okay, dear students, what does voltmeter do? Voltmeter is basically made by joining a very small resistance known as shunt resistance with a galvanometer in series to it. When we join another resistance to the galvanometer, then what happens? What happens is that the resistance of the galvanometer increases. Okay, so some part of the current is used to make the potential drop across the galvanometer, and voltmeter is not able to give the accurate voltage readings. Okay, why? Because there is a potential drop across voltmeter and it is not able to provide accurate
readings and it is not able to provide accurate readings of potential drop. but देखिए पोटेंशियोमीटर का प्रेफरेंस ज्यादा है वोल्ट मीटर के कंपैरिजन में. व्हाई? बिकॉज पोटेंशियोमीटर जो है वो एक्यूरेट रीडिंग देता है और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप होने की वजह से वोल्ट मीटर के ऊपर एक अलग से पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक्यूरेट रीडिंग्स नहीं दे पाता है पोटेंशियल डिफरेंस की. लेकिन हम बहुत ऑफनली यूज वोल्ट मीटर को ही करते हैं. हमारी जितनी भी लैब्स होती हैं उनमें हम वोल्ट मीटर ज़्यादा मेजर करते हैं. जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे जाएंगे वहाँ पर भी हम देखते हैं कि वोल्ट मीटर का ही ज़्यादा यूज़ होता है. यूज़ एक्यूरेट पोटेंशियोमीटर है, यूज़ वोल्ट मीटर ज़्यादा होता है. क्यों होता है? बिकॉज छोटा सा डब्बा होता है वोल्ट मीटर, ईजी टू कैरी, ईजी टू यूज, जबकि पोटेंशियोमीटर इज ए वेरी लार्ज डिवाइस. वन कैन नॉट यूज इट वेरी क्लियरली. अब बताते हैं कि पोटेंशियोमीटर होता कैसा है. लेट अस टॉक अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर. ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर. नाउ एक्चुअली क्या करते हैं, हम एक बहुत लंबा वायर लेते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का. इसका जो एरिया है वो यूनिफॉर्म रहना चाहिए, एक जैसा रहना चाहिए. ये नहीं है कि ये कहीं से मोटा है कहीं से पतला है, ना, ऐसा नहीं करेंगे. अपना ये जो वायर है इसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया होना चाहिए. और इस वायर को हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं. किससे कनेक्ट कर देते हैं? एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं. बैटरी से कनेक्ट करने के बाद हम इस चीज को एक की ओर लगा देते हैं यहां पर, ठीक है, ये हमने की लगा दी. और इसकी लेंथ नल पॉइंट मेथड पर काम करता है. इस चीज को अपन पढ़ेंगे अभी, नल पॉइंट मेथड क्या होता है. लेकिन इस लेंथ को मेजर करने के लिए हमने यहां पर एक मीटर स्केल और ले लिया, ठीक है. दिस इज ए मीटर स्केल. ये कुछ इस प्रकार का दिखता है. पोटेंशियोमीटर के ऊपर बहुत सारे वायर्स होते हैं. मीटर ब्रिज से बच्चों ये थोड़ा सा अलग होता है. मीटर ब्रिज जो अपन ने लास्ट डिवाइस पढ़ी थी उसमें क्या था, उसमें 1 मीटर लंबा वायर था, जबकि हम पोटेंशियोमीटर में अराउंड 10 मीटर लॉन्ग वायर यूज करते हैं. अब 10 मीटर तो सर बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना. किस प्रकार से मैनेज करेंगे, तो वी विल सी कि किस प्रकार से मैनेज करेंगे. अभी अपन इसका बेसिक सा फंडा देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये काम करता है, ठीक है. तो बच्चों यहाँ पर मैंने इस बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है. तो जब बैटरी के इस की को जैसे ही मैंने ऑन कर दिया, प्रेस किया, तो क्या होगा, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू इट, और करंट इसके थ्रू फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है. जब करंट इसके थ्रू फ्लो होना स्टार्ट होगा तो ए और बी के बीच में एक पोटेंशियल ड्रॉप बनेगा, ठीक है. मान लेते हैं ये V वोल्ट की बैटरी है, हमने यहाँ पे कोई और रेजिस्टेंस नहीं लगा रखा और ये वायर इसके पैरेलल में ही है. तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर भी V वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा. अब हम मेजर करेंगे इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ है, ठीक है. अब ओम जो है वो हमें एक बात कह के गई थी, बताया ना, कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के. अपन यही पढ़ते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. हाँ, इस स्टेटमेंट की वैलिडिटी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो उस चीज को डिस्कस नहीं करेंगे. तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया, V इज इक्वल्स टू IR, वेयर R इज रेजिस्टेंस. किसका रेजिस्टेंस? अब ये क्योंकि ये कंडक्टिंग वायर है तो इसका रेजिस्टेंस होगा जो A और B टर्मिनल के बीच में लगा हुआ है, इसका रेजिस्टेंस है R. तो बच्चों अब क्या होता है, R की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है 3 फैक्टर्स के ऊपर, रेजिस्टिविटी, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो जो रेजिस्टेंस है उसको मैं रिप्लेस कर देता हूं ρL/A से, राइट. अब करंट जो है, हमने यहाँ पर एक डीसी सोर्स की बैटरी इस्तेमाल की हुई है. डीसी सोर्स की बैटरी है तो यहाँ से एक कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है,
कर रहा है ना, कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो करंट कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल कांस्टेंट है, वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट एरिया। तो हम यहां से देख रहे हैं कि अपना जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस वायर के थ्रू, याद रखना ये है कि आपको ये बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप नहीं लेना, आपको इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप देखना है। इस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा अपना, वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। आई रो ए कांस्टेंट मान लिया अपन ने बेटा। तो अब क्या करना है, V इज इक्वल्स टू के एल। के हमारा कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, वैल्यू क्या होती है इस चीज को अपन डिस्कस कर लेंगे। तो यहां से बन गया V बाई एल इज इक्वल्स टू के। ये हमारा बेटा प्रिंसिपल होता है पोटेंशियोमीटर का। कंस्ट्रक्शन की अपन ने बात कर चुके हैं, कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा और डीप में देख लेंगे क्योंकि हमें 10 मीटर लंबा वायर यूज करना है। बहुत सारे, किसी जगह लैब्स में 4-4 मीटर लंबे होते हैं, कई जगह रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 10-10 मीटर लंबे वायर भी होते हैं। तो ये अपना प्रिंसिपल आ गया, किसका आ गया, पोटेंशियोमीटर का। क्या आ गया कि V बाई एल जो है वो K रहेगा। K क्या होता है, कांस्टेंट। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि वोल्टेज पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट। इस चीज को बोलते हैं अपन वोल्टेज ग्रेडियंट। बहुत बार मैंने आप लोगों को ये बताया था कि रेट शब्द का मतलब क्या होता है, बताया था रेट शब्द का मतलब होता है डिवाइड बाय टाइम, लेकिन यहां पर हमारा वोल्टेज ग्रेडियंट आ गया। तो बच्चों ग्रेडियंट शब्द का मतलब ही होता है जब आप किसी चीज को लेंथ से डिवाइड कर दोगे तो वो अपना ग्रेडियंट बन जाएगी, ठीक है। तो वोल्टेज ग्रेडियंट अपना कांस्टेंट रहता है। तो क्या प्रिंसिपल बोलेंगे पोटेंशियोमीटर का, प्रिंसिपल ये बन जाएगा पोटेंशियोमीटर का कि द वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। द वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। अब इस चीज का मतलब क्या हुआ पता है, इस चीज का मतलब ये हुआ कि अगर इस वायर की लेंथ L है, ठीक है, तो हमारा हर यूनिट लेंथ में जो पोटेंशियल का ड्रॉप है वो कांस्टेंट होगा। क्या मतलब, उसको डीपली देखते हैं। मान लो बच्चों यहां से यहां तक की लेंथ 1 मीटर है, तो यहां पे अगर V वोल्टेज हुआ है ड्रॉप, तो अगली 1 मीटर लेंथ में भी V वोल्टेज का ही ड्रॉप होगा, और से अगली 1 मीटर लेंथ में भी V वोल्टेज का ही ड्रॉप होगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ जो है वो हमेशा कितना रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है बात, चलो ठीक है। अब मान लेते हैं, मैं चलो इस चीज को और जब अपन, ये तो प्रिंसिपल हो गया, जब अपन इसकी वर्किंग पढ़ेंगे तब इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। ओके, अब कंस्ट्रक्शन बात कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है इस पोटेंशियोमीटर का। यहाँ पर बेसिक 2-3 छोटे छोटे सर्किट डायग्राम है। इन सर्किट डायग्राम्स के लिए आपको क्या चाहिए, कुछ ज़्यादा नहीं, एक छोटी सी प्रैक्टिस चाहिएगी, क्योंकि आप जब प्रैक्टिकल्स करेंगे तो पोटेंशियोमीटर के प्रैक्टिकल्स भी आप लोगों को करने हैं, ठीक है। चलो, तो हम क्या करते हैं बच्चों, हमारे पास ना एक वायर लिया हमने 1 मीटर लंबा, लेकिन क्या है कि वोल्टेज ड्रॉप या पोटेंशियोमीटर में वायर हमें थोड़े लंबे चाहिए। तो मैंने एक लिया थिक मेटल की स्ट्रिप ले ली, ठीक है, और इस थिक मेटल स्ट्रिप पे इस वायर को यहां से बांध दिया। मेटल की स्ट्रिप है तो यहां से एक और वायर लेके बांध दिया, ठीक है। अब ये वाला वायर क्या जाएगा, ये वाले वायर को भी हमने एक और कॉपर की स्ट्रिप ली, एक मेटल की स्ट्रिप ली और उसको यहाँ से बांध दिया, फिर एक और ले लिया, इस प्रकार से बांध दिया, फिर यहाँ पर भी बांध देते हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा कि हम कितने भी कनेक्शंस कर सकते हैं। और ये अपनी थिक मेटल स्ट्रिप से हैं, क्या है, थिक मेटल स्ट्रिप्स हैं, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे अपनी एक बैटरी से। हाँ, बैटरी का तो मतलब समझते हो ना, जब अपन बहुत सारे सेल्स को कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, इन्वर्टर की बैटरी, मोबाइल की बैटरी, टॉर्च वाली बैटरी, सेल्स, तो हमने यहाँ इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो ये अपना बेसिक डायग्राम बन गया, किस चीज का बन गया, पोटेंशियोमीटर का,
ठीक है। अब पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन ऐसा कुछ होगा, आप जब लैब में जा करके देखेंगे तो ये पूरे एक लकड़ी के सेटअप पे रखा रहता है। लकड़ी के सेटअप पर वायर्स 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 ऐसे लगे रहते हैं। यू कैन गो टू, जब भी आपका लॉकडाउन के बाद स्कूल खुलेगा तो आप उस चीज को देख पाएंगे, ठीक है। तो ये है अपना पोटेंशियोमीटर का बेसिक सा सर्किट डायग्राम, ठीक है बच्चों। अब पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि वर्सेटाइल पर्पज के लिए यूज होती है। अब वर्सेटाइल पर्पज का मतलब हमारा फॉर द मल्टीपर्पज, बहुत सारे पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से पर्पज होते हैं, लेट अस डिस्कस देम, ओके। पहला पर्पज है बच्चों हमारा टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से ईएमएफ मेजर कर सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं दो सेल्स का। कंपैरिजन से अपना मतलब क्या हुआ, कंपैरिजन से बच्चों मतलब ये है कि हम ये देख सकते हैं कि अगर एक सेल की ईएमएफ आपको पता है तो आप दूसरे सेल की ईएमएफ निकाल सकते हो। दूसरा यूज जो पोटेंशियोमीटर का है वो क्या होता है, ये होता है टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। हम किसी भी सेल का इंटरनल आंदरूनिक रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। नाउ कम्स द क्वेश्चन, how we are going to use the potentiometer for comparing the EMF of two cells। अपने पास ये चीज है तो हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले चाहिए अपना पोटेंशियोमीटर, ठीक है बच्चों। पोटेंशियोमीटर लेंगे, दो सेल्स लेंगे जिनकी EMF को अपने को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो चलो इन दोनों चीजों को पढ़ने से पहले अपन एक बार पुरानी चीज रिवाइज करते हैं। क्या होता है EMF का मतलब, ठीक है, जरा वीडियो पॉज करके सोचो EMF का मतलब क्या होगा। तो EMF का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, होता है ना। क्या करती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये दो सेल्स के बीच का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, हाँ ये क्वेश्चन बनता है कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है। मतलब ये है कि एक सेल जब किसी प्रकार का कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, इसको किसी भी सर्किट में नहीं कनेक्ट कर रखा, उस समय इसकी दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, उस चीज को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, दूसरी बात आई इंटरनल रेजिस्टेंस की। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस देखो बच्चों, हर सेल को जब अपन बनाते हैं, व्हेन आइदर एनी सेल इज मैन्युफैक्चर्ड, तो वी यूज सम इलेक्ट्रोलाइट्स इन इट, right? And electrolytes break down themselves into ions, and those ions are flowing inside the electrolyte. Those ions are the only things that are acting as charge carriers. अब चार्ज कैरियर्स के रूप में वो काम करती हैं, तो आयंस मूव करेंगे तो वो कोलिजन्स होंगे, कोलिजन्स होंगे तो रेजिस्टेंस बनेगा। तो हर सेल का उन आयंस के कोलिजन्स की वजह से जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है उसको बोलते हैं अपन इंटरनल रेजिस्टेंस। है रेजिस्टेंस ही लेकिन इंटरनल है। इंटरनल का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइट की आयंस के कोलिजन्स की वजह से जो बना है उस चीज को अपन बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब अपन बारी बारी करके पोटेंशियोमीटर के ये दोनों यूज पढ़ेंगे, ओके।